Congress leader Rahul Gandhi has written a letter to President Draupadi Murmu. In his letter, he has written about how Agnipath scheme is discriminatory in nature in the extent of benefits given to the families of martyred soldiers and calls the scheme Anyay to the Agniveers. He has urged her to intervene in the matter and take action. He has also written that if the India Alliance forms a government on the 4th of June, then they will be repealing this scheme. My colleague Anand Singh with us on the broadcast. Anand, if you can take our viewers through the details of what Rahul Gandhi has said. Yeah, Rahul Gandhi has written a 2-page letter to President of India, Draupadi Murmu, urging that the Agnipath scheme that the government brought in June 2022. So this scheme is doing injustice to the Agniveers who have been being recruited for 4 years in the Indian Armed Forces. In his 2-page letter, he also made an appeal to provide nyaya, that is justice, to the Agniveers who lay down their life in service to the nation. And in his letter, he also mentioned that there can be no clear illustration of the fundamental flaw in the Agnipath scheme, the creation of a lesser cadre of soldiers who are expected to work on the similar tasks with lower paid benefits and prospects. So these are the things that Rahul Gandhi has mentioned in his letter. And then he also went on to add that the discrimination in the nature and extent of benefits accorded to the families of the slain Agniveers compared to regular soldiers warrants her urgent attention. So these are the things that he mentioned in his letter, and he also went on to highlight that once India Alliance comes to power, then it will scrap the Agnipath scheme that has been brought by the government, mentioning how the Congress and the India bloc has earlier opposed the idea of the Agnipath scheme when the government had brought it. So these are the things that Rahul Gandhi had asked the President, as he is the Supreme Commander of the Armed Forces, to look at the matter seriously. Back to you, Devika. Right, absolutely. Anand, thank you for joining us. Let me quickly take in a word from Mr. Pramod Swami of the BJP, also with us. Mr. Swami, Rahul Gandhi is once again writing to President Draupadi Murmu regarding the Agniveer scheme. He says that if the India bloc will form a government on the 4th of June, then they will be repealing the scheme. And he says that this is a grave injustice to young aspirants who wish to join the army. How does the BJP respond? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी आपने कल एग्जिट पोल देखे, उसमें सारे एग्जिट पोल ने ये बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का जो सपना है कि इंडिया अलायंस आएगा, ये मेरे ख्याल से मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, 60-70 सालों तक जिस पार्टी ने देश में राज किया, वो उस पार्टी के नेता आज ये बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे या सेना के लिए ये करेंगे। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने सेना के लिए क्या किया, तब उन्होंने देश की गरीब जनता के लिए क्या किया। एक समय में राजीव जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और मात्र 15 पैसा जनता के पास में पहुंचता है, लेकिन उस बंदरबाट को रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने कुछ नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में डीबीटी लेके आए, और आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो पूरा 1 रुपया आज जनता के पास में पहुंचता है। तो ये बदलाव है, और इसी की वजह से आज जो 3rd टाइम जो मैंडेट जो मोदी जी को, जनादेश जो मोदी जी को मिलने जा रहा है, उसकी वजह ये है कि आज देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आस्था और विश्वास है, और ये जो विपक्ष के नेता है, ये देश की जनता का आस्था और विश्वास खो चुके हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नरेंद्र मोदी जी ने डिलीवर किया है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में देश के लोगों की आस्था और विश्वास है, उनकी गारंटी पे लोगों को विश्वास है। और राहुल गांधी जी ने तो 2019 का चुनाव भी चौकीदार चोर के मुद्दे में लड़ा था उन्होंने, और राफेल का मुद्दा वो लेकर के आए थे, लेकिन देश की जनता ने 2019 में भी उनको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डांट भी खानी पड़ी। तो राहुल गांधी की बात को आज कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। आज जब
इसके सारे चैनल जो है वो जो एग्जिट पोल कर रहे हैं और सारे चैनल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और उस समय में राहुल गांधी जी अगर प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख करके भेजते हैं कि हाँ अगर हम सत्ता में 4 तारीख को हम सत्ता में आने वाले हैं और आने के बाद में हम इस योजना को रद्द कर देंगे, तो ये राहुल गांधी की मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इनमेच्योरिटी है। अगर उनको ऐसा कोई बयान देना भी था तो वो कम से कम 4 तारीख का इंतजार करते, 4 तारीख को जनादेश देखने के बाद में उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी थी। लेकिन उसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम इस स्कीम को हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे महाराज, आप तो सत्ता में आ ही नहीं रहे। सारे चैनल और सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आप सत्ता से काफी दूर हैं और आपका जो सपना है वो मुंगेरी लाल के सपने से बढ़कर करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश की जनता आपके 60-70 साल के आपके शासन को देख चुकी है। और आप खुद आज भ्रष्टाचार के आरोप में राहुल गांधी और सोनिया जी खुद आज बेल पर है। तो जो नेता खुद बेल पर है, उनकी बात की कितनी विश्वसनीयता जनता के बीच में है, ये 4 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा। तो राहुल गांधी जी के बयान को मेरे ख्याल से कोई भी आज की डेट में सीरियसली नहीं लेता है। और राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी के नेता भी मेरे ख्याल से 4 तारीख के बाद में सीरियसली लेना उनको भी बंद कर देंगे। Right, absolutely. Mr. Swami, thank you so much for joining us on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.